Have a nice day, student of Standard 7. Exercise 11.3, example number 6. Sadhna wants to put a glass on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of the lace cost rupees 15, take pi is equal to 3.14. Example number 6. Circular lace. डायमीटर हमें दिया है 1.5 मीटर, इसमें से हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं द डायमीटर of the circular table cover is equal to 1.5 meter. Therefore, radius is equal to diameter divided by 2, 1.5 meter upon 2. अब हमें लेंथ ढूंढने की है, तो यहाँ लिख देते हैं द length of the lace required will be equal to the circumference of the circular table is equal to 2 pi r. That means 2, 3.14 and r, that means 1.5 upon 2 meter. 2 cancel out, and 3.14 multiply 1.5 is equal to 4.71 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore 4.71 मीटर of lace is required. अब लेस की कॉस्ट ढूंढते हैं। The cost of 1 meter of lace is equal to rupees 15. Therefore, the cost of 4.71 meter of lace is equal to how many? That means 4.71 multiply 15. तो हमें आंसर मिलेगा रुपीज़ 70.65। तो यहाँ हम लिख देते हैं the cost of 4.71 meter of lace is rupees 70.65. Example number 7. Find the perimeter of the adjoining figure, which is a semicircle including its diameter. तो यहाँ हमें semicircle का perimeter ढूंढने का है including its diameter. ओके, यहाँ example number 7. ऐसी फिगर दी है और ये मेज़र दिया है 10 सेंटीमीटर
पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं पेरीमीटर of the semicircle including its diameter is equal to length of the semicircle plus length of the diameter। लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल यानी कि 2πr, ये सर्कल का पेरीमीटर ढूंढने के लिए इक्वेशन है, लेकिन ये सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस लेंथ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर हमें 10 दिया है। ओके, तो यहाँ हम लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर दैट मीन्स ये 10 डायमीटर है तो उसका हाफ करेंगे तो 5 प्लस 10, यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ ये 2 तो रखने का है ही, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110/7 प्लस 10, ये 7 एलसीएम आएगा तो 110 प्लस 7 10 जा 70/7 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25.71 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर द पेरीमीटर of the semicircle including its diameter is 25.71 centimeter. Okay, example 8, find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square. Take pi is equal to 3.14. एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दे दिया है डायमीटर of the circular tabletop is equal to 1.6 meter. Therefore, its radius is equal to diameter divided by 2. Therefore, 1.6/2 is equal to 0.8 मीटर। सर्कुलर टेबल टॉप दिया है, वहाँ हमें पॉलिश करने की है तो एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ हम ढूंढ लेते एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू लेने की है 3.14। तो 3.14 मल्टीप्लाई आर दैट मीन्स 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, ये तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। हमें रेट भी दे दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं द
rate of polishing 1 meter square area is equal to rupees 15. Therefore, the rate of polishing two 2.0096 meter square area is equal to how many? Therefore, 15 multiply 2.0096 is equal to rupees 30.144. यहाँ हम लिख देते therefore the cost of polishing the circular tabletop is rupees 30.144. Okay. Example number 9. Srishti took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of circle. Find the radius of the circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi is equal to 22/7. तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें दे दिया है द वायर ऑफ लेंथ 44 centimeter is bent into the shape of a circle. एक वायर ले लिया है, इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और इसको बेंट किया है और सर्कल बना दिया है. तो ये हो गया, यानी इसका 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 हो गया. अब इसका हमें एरिया ढूंढने का है. तो एरिया ढूंढने के लिए रेडियस ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर द circumference of the circle is equal to 44 सेंटीमीटर. तो ये इसका जो इक्वेशन है वो 2 पाई आर है. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. 2 पाई की जगह पे हम लेंगे 22/7. आर हमें ढूंढने का है और ये 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब आर ढूंढने का है तो क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 44 × 7 डिवाइड बाय 2 × 22. तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. ये 22/7 है तो 7/22 और ये 2 यहाँ दिया है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा. और 22 2 44 and 2 to cancel out. Therefore R is equal to 7 सेंटीमीटर हमें मिल गया. अब हम एरिया ढूंढ सकते हैं. एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर, दैट मीन्स 7 × 7. ये 7 कैंसल आउट हो गए. तो ये 22 × 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सर्कल का एरिया हमें मिल गया. अब टेक्स्ट बुक में जैसे कहा ऐसे उसको बेंट करके स्क्वायर बनाया है.
और उसका एरिया ढूंढने का है। तो ये इसकी लेंथ तो 44 है ही, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का इक्वेशन कौन सा है? 4 मल्टीप्लाई साइड is equal to 44 centimeter. Therefore, side is equal to 44 divided by 4 centimeter. Therefore, side is equal to 11 centimeter. यानी कि स्क्वायर होगा उसकी साइड का मेज़र होगा 11 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया ढूंढते हैं। Therefore, area of a square is equal to side square, that means 11 square 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया है उससे सर्कल का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर द सर्कल encloses more area than the square। ओके, इसके साथ ये एग्जाम्पल पूरा हुआ। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. Take pi is equal to 22/7। तो यहाँ एक फिगर दी है। ये फिगर के अंदर ये जो बड़ा सर्कल दिखता है उसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर और ये 2 सर्कल स्मॉल सर्कल जो दिए है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल दिया है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और ये 1, 2 और 3 पार्ट को कैंसिल करेंगे, बाद में कितना एरिया रहता है उसका एरिया हमें ढूंढने का है। ओके, तो यहाँ ये फिगर ड्रॉ कर दी है, 2 सर्कल और ये सर्कल और ये बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हम ढूंढ लेते हैं पहले। तो एरिया of the circular card sheet is equal to pi r square। तो पाई की जगह पे हम लेंगे 22/7। r दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, ये 7 2 जा 14 यानी 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे सर्कल है उसका हम ढूंढते हैं। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ढूंढ लेते हैं। तो एरिया ऑफ द smaller circle is equal to pi r square। pi is equal to 22/7 r square, that means
3.5 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। 7 फाइजा यानी कि 0.5 सेंटीमीटर बाकी रहेंगे। अब ये तीन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमें स्मॉलर सर्कल का एरिया 38.5 मिला। यहाँ 2 सर्कल दिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिलेगा। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया ढूंढते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। तो लेंथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 बन जाए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना हुआ, तो टोटल लिख देते हैं यहाँ। तो टोटल एरिया ऑफ द कार्ड शीट that is remove is equal to 77 centimeter square plus 3 centimeter square is equal to 80 centimeter square। सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया मिला था, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर एरिया of the remaining card sheet is equal to 616 centimeter square minus 80 centimeter square is equal to 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मिल गया। यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड शीट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सब भी आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।